Good morning, students. Today we will start unit third. Unit third is Hankel transform. We will discuss about Laplace transform, Fourier transform in detail. Now we discuss about Hankel transform. First we define Hankel transform. In Laplace transform operator is Laplace transform of fx comma p equal to 0 to infinite e raised to the power minus px fx dx. E raised to the power minus px is the kernel of Laplace transform. Fourier transform notation is Fourier transform of fx comma p. L is Laplace transform operator and it is Fourier transform operator. Fourier sine transform operator and it is Fourier cosine transform operator. The definition of Fourier transform of fx comma p equal to 1 upon under the root of 2 pi 0 to infinite e raised to the power minus iota px fx dx. E raised to the power minus iota px is the kernel of Fourier transform. 1 upon under root 2 pi minus infinite to infinite e raised to the power iota px fx dx. 1 upon under root 2 pi e raised to the power iota px is the kernel of Fourier transform. ठीक है, इसको भी इंक्लूड करोगे इसमें लिमिट्स माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट आएगा और फोरियर साइन और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में जो लिमिट है वो 0 टू इनफाइनाइट आएगा और इसकी जगह अंडर द रूट ऑफ 2 अपॉन पाई. जैसे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी, इसको कैसे डिफाइन किया था? अंडर द रूट ऑफ 2 अपॉन पाई 0 टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स इंटू साइन पी एक्स डी एक्स. Under the root of 2 upon pi sin px. Under the root of 2 upon pi into sin px is known as kernel of Fourier sine transform. Fourier cosine transform में क्या हो जाएगा? यहाँ cos px हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा. Under the root of 2 upon pi 0 to infinite fx into cos px dx. Under the root of 2 upon pi into cos px is known as Fourier cosine kernel of Fourier cosine transform operator. ओके ठीक है, तो ये ध्यान रखना है. इसमें लिमिट यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट आएगा और ये पॉजिटिव आएगा. लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन सिंपल, 0 टू इनफाइनाइट ई रेज़ टू द पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स. तो ये चीज़ें जो है वो क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल. इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या मेन फार्मूले जनरल फार्मूले आए हैं इनमें, किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्यूशन किया है. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही टाइम कम लगेगा और कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करो और उसको प्रिपेयर करो अच्छे से. कंप्लीट हो गए दोनों, बहुत अच्छे से करवा दिया आपको एक एक क्वेश्चन उसमें सभी. नेक्स्ट हैंकल ट्रांसफॉर्म डिफाइन करेंगे सबसे फर्स्ट इसको. Let fx be a function for all positive values of the variable x such that x is greater than 0. Then the Hankel transform
of fx is denoted by Hankel transform of fx comma p, or f nu p or fp is defined as equal to 0 to infinite x into j nu px fx dx, where j nu px is the Bessel function of first kind of order nu. And x into j nu px is known as kernel of the Hankel transform, and h nu, तो डेफिनेशन का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फूरियर ट्रांसफॉर्म उनसे एज इट इज मैच करता हुआ है. ओनली नोटेशन, डेफिनेशन, कर्नल की वैल्यू ये यहाँ पर चेंज हो जाएंगे. एंड एच न्यू स्टैंड्स फॉर हैंकल ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन ऑफ order nu. Simple definition है fx be a given function for all positive value of x, then Hankel transform of fx is denoted by Hankel transform of fx comma p or f nu p or fp equal to 0 to infinite x into j nu px fx dx. x nu px into j nu px is known as kernel of the Hankel transform. ये Hankel transform ऑपरेटर है h nu. जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैपिटल L से, फूरियर ट्रांसफॉर्म को इस तरह से डिनोट करते हो, फूरियर साइन, फूरियर कोसाइन, तो ये हैंकल ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर है. इसको इस तरह से डिफाइन करोगे. ये कर्नल हो गया हैंकल ट्रांसफॉर्म के लिए. जे न्यू पी एक्स सभी जानते हो. जे न्यू पी एक्स इज नोन एज बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर न्यू ऑफ फर्स्ट काइंड. बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर न्यू. ठीक है. बेसल फंक्शन जे एन एक्स की डेफिनेशन सभी को अच्छे से क्लियर है. जे एन एक्स के अकॉर्डिंग जे न्यू पी एक्स को डिफाइन कर सकते हो. तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई. नेक्स्ट इसमें कुछ रिजल्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, तो वो तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आएंगे बताते जाएंगे आप लोगों को. एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, of Hankel transform. First है change of scale property.
If Hankel transform of fx comma p equal to f nu p, then the change of scale property of Hankel transform is Hankel transform of x को चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में किससे चेंज करते हो, x को ax से। यदि x ax से चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग है इसके हैंकल ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/a आता है वैसे, इसमें हैंकल ट्रांसफॉर्म में क्या आएगा 1/a²। एफ न्यू p अपॉन a, a इज नॉट इक्वल टू 0। अब प्रूव करोगे, ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो, डिफाइन करो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और राइट हैंड साइड के इक्वल इसको प्रूव करेंगे। डेफिनेशन 0 to इनफाइनाइट x इंटू जे न्यू पी एक्स। फंक्शन के स्पेस पे यहाँ पर f ऑफ ए एक्स है, तो f x के स्पेस पे f ऑफ ए एक्स आ गया। ठीक है, ए एक्स को टी पुट करो, वही इसी तरह से करते हो सब में। ए एक्स को टी पुट किया, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन ए। पुट लिमिट्स वही रह जाएंगी, x इक्वल टू टी अपॉन ए। जे न्यू पी एक्स है तो ये हो जाएगा p इंटू टी अपॉन ए, एफ ऑफ टी, और डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन ए इक्वल टू 1/a² कॉन्स्टेंट हो गया। जे न्यू 1/a² कॉन्स्टेंट हो गया, ये 0 to इनफाइनाइट, और t इंटू जे न्यू p अपॉन a इंटू टी, एफ ऑफ टी डी टी। तो हैंकल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1/a², ये हो जाएगा हैंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी। ठीक है, तो इसमें p के स्थान पर क्या है p अपॉन ए, तो p एफ ऑफ टी कोमा p अपॉन ए। ठीक है, तो t को तो x से चेंज कर सकते हो, एफ एक्स कोमा p होता है तो एफ न्यू p से डिनोट करते हो। अब यहाँ पर p के स्पेस पे क्या है p अपॉन ए, तो ये वैल्यू क्या हो गई 1/a², तो एच इट इज रखो, और एफ न्यू p के स्पेस पे क्या आ गया p अपॉन ए। मीन्स चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यदि x ax से रिप्लेस हो रहा है तो उस केस में वैल्यू क्या हो जाएगी 1/a² इंटू एफ न्यू p अपॉन ए। p जो है वो p अपॉन ए से चेंज हो जाता है। सेम प्रॉपर्टी थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में और फूरियर। तो कंपेयर करके जितना चीज़ों को या प्रॉपर्टीज को लर्न करोगे, प्रूव्स का ध्यान रखोगे, उतना ही इजीली रटने का ज़रूरत भी नहीं होगी और कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते हैं। ये अपना राइट हैंड साइड हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, इसमें एक 2-3 एग्जांपल्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। उसमें बेसल फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज भी हो जाएंगी जो आप लोगों ने लास्ट ईयर एमएससी प्रीवियस में बेसल फंक्शन में रिजल्ट्स जो है वो प्रूव किए थे। यहाँ सीधे रिजल्ट यूज करेंगे। एक इसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी और है, तो उसकी मैं सिंपल है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, इजीली उसको कर सकते हो, तो उसका मैं पिक सेंड कर दूँगी। तो वो आप लोग सिंपल उसमें डेफिनेशन लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना लीनियरिटी प्रॉपर्टी में, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिफाइन कर देना सेपरेट करके, और इजीली उसको प्रूव कर सकते हैं। पिक सेंड करेंगे और उसमें करके देखना, कहीं प्रॉब्लम होगी मुझे बता देना, बता देंगे वो। बाकी लीनियरिटी प्रॉपर्टी जो है एग्जाम में इतना पूछते नहीं है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म और उसमें करवा दिया था, इसमें आप इजीली कर सकते हो।